بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 6565۔ میں نے سوچ لیا کہ اب کہیں مجھے آرام کرنے کی مہلت اگر ملی تو سب سے پہلے شیٹل جیسی فولادی دیوار کو توڑنے کی تدبیر کروں گا۔ اس کم بخت نے مجھے توڑ پھوڑ کر ہسپتال پہنچا دیا تھا، اب جلد از جلد میں اسے توڑ پھوڑ کر جہنم پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد بلیک گائیڈ خود بخود ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ میں دوسروں کی سوچ پڑھتے پڑھتے خود اپنی ہی سوچ سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ ایسے وقت پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے دوبارہ بلیک گائیڈ سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت شبیر حسن اور شیتل ایک ایمبولینس میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ شبیر حسن ویگن کے پچھلے حصے میں بٹھا رہا تھا، پچھلے حصے میں بھوانی شنکر لیٹا ہوا تھا۔ بلیک گائیڈ نے پچھلا دروازہ کھول کر دیکھنے کے بعد شبیر حسن سے پوچھا، فرحاد کا کیا بنا؟ وہ اسپتال کے بیڈ پر نہیں تھا، پھر کہاں تھا؟ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم اسپتال جانے میں وقت برباد نہ کریں، فرحاد کا کام تمام کریں اور بھوانی شنکر کو لے کر وہاں چلے جائیں گے۔ جب فرحاد نہیں ملا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ پہلی فرصت میں بھوانی شنکر کو نکال لاؤں۔ بلیک گائیڈ نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا، لیکن فرحاد ہمارے لیے ایک مستقل خطرہ بن گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ابھی بارڈر کراس نہیں کر سکتا۔ اس وقت 4 بجے ہیں، سرحد تک پہنچنے سے پہلے صبح ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم فوجیوں کی نظر میں آ جائیں۔ شبیر حسن کے ساتھ انٹیلیجنس کے 2 مسلح جوان تھے۔ بلیک گائیڈ کی باتیں سن کر ایک جوان نے چونک کر پوچھا، کیا آپ غیر قانونی طریقہ سے سرحد پار کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک گائیڈ نے جواب دیا، ہاں، سرحد پار کرنے کے لیے لوگوں کا وجود ضروری نہیں ہے۔ اس نے گونگے شیٹل کو اشارہ کیا، ان مسلح جوانوں کا کام تمام کر دے۔ اس کا حکم پاتے ہی شیتل نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ وہ 2 صحت مند اور تربیت یافتہ فائٹر تھے، مگر اس کے حملوں کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ ان کے جوابی حملہ فولادی انسان پر اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ ایک ایک ہاتھ میں دونوں کو پکڑ کر زمین دکھا دیتا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم ہاتھ کسی طرح ہڈی بس لیے کر دیتا تھا، اس کا مجھے ذاتی تجربہ تھا۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا اور میں اس کے متعلق سوچتا ہوا خاموش تھا اور اسے داد دے رہا تھا۔ ایسا ہو کہ مقابلہ کرتے وقت پسینہ چھوٹ جائے۔ مجھے اس سے خوف بھی آنے لگا تھا، مگر میں اب فرصت کے لمحات میں اس کی زندگی تمام کرنے کے بارے میں عزم کر رہا تھا کہ آخری سانس تک ایسے ناقابل شکست کو شکست دوں گا۔ شیتل نے ذرا سی دیر میں دونوں کی گردنوں کو اپنی دونوں بغلوں میں دبا لیا۔ یہ سب کچھ بلیک گائیڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور آنکھوں کے تعاون سے میں بھی دیکھ رہا تھا، اور دماغ آنکھوں کے تعاون سے سوچتا ہے، لہذا میں اس کی سوچ کی کمنٹری سے تصور کی اسکرین پر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شیتل نے دونوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں مار ڈالا۔ اس کے بعد شبیر حسن التجا کرتا رہا کہ اس کے ماتحتوں کو نہ مارا جائے، لیکن وہ اس کے سامنے ختم کر دیے گئے۔ اس کے مرنے کے بعد بلیک گائیڈ نے کہا، شبیر حسن، یوں تو اب تمہیں بھی مر جانا چاہیے، لیکن فرحاد کہیں نہ جانے گم ہو گیا ہے۔ اب انٹیلیجنس والوں کو میرے پیچھے وہ لگا دے گا۔ اس کے پاس ٹیلی پیتھی کا ایسا علم ہے کہ میں جہاں پناہ لوں گا وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے
इस जगह का पता मालूम कर लेगा और पुलिस वालों को वहां पहुंचा देगा। फिलहाल अपनी और शीतल की सलामती के लिए तुम्हें यरगमाल के तौर पर रखना जरूरी है। जब तक तुम हमारी कैद में रहोगे पुलिस वाले हमें नुकसान पहुंचाने से परहेज करते रहेंगे। उसने अपनी टाई खोल कर शीतल को देते हुए इशारे से समझाया कि शबीर हसन के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बांध दे। उसके हुक्म की तामील करते हुए शीतल ने बड़ी तेज रफ्तारी से शबीर हसन के बाजू दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए। ब्लैक गाइड बड़ी तेजी से सोच रहा था कि किस तरह ऐसे मुकाम तक पहुंच सकता है जहां तक मेरा इल्म न पहुंच पाए। हालांकि मेरे इल्म को महदूद करना बज़ाहिर नामुमकिन था, लेकिन इंसान अपनी कोशिश तो कर सकता है ना। मुमकिन भी हो सकती थी। फिर मैं ब्लैक गाइड की जहानत का कैल हो गया। उसने मुझे खुद से दूर रखने के लिए एक उम्दा तदबीर सोच ली। उसने शीतल को इशारों से समझाया। वो इशारों को समझ रहा था, फिर उनके मुताबिक अमल करने लगा। उसने ब्लैक गाइड और शबीर हसन की आंखों पर पट्टी बांध दी और पिछली सीट पर बिठा दिया। वहां बीमार भवानी शंकर पहले ही लेटा हुआ था। मकसद ये था गूंगा शीतल कार ड्राइव करके इन्हें जिस जगह ले जाएगा इसका रास्ता शबीर हसन और ब्लैक गाइड अपनी आंखों से न देख सकेंगे। अगर देखेंगे तो उनका दिमाग इन रास्तों के बारे में न सोच सकेगा। मैं उनके दिमाग से इनकी मंजिल का पता न मालूम कर सकूंगा। ब्लैक गाइड ने वाकई ही जहानत का सबूत दिया था और शीतल को यह समझा दिया था कि वह अपनी मर्जी से एक पनाहगाह की तरफ इन्हें ले जाए, जहां उसे उसके मुतल्लिक अपने पास ब्लैक गाइड को भी नाम बताए। अब ये सूरत हाल थी कि वो दोनों आंखें बंद किए पिछली सीट पर बैठे हुए थे अंधों की तरह, और एक गूंगा ड्राइव करता हुआ अनजानी मंजिल की तरफ इन्हें ले जा रहा था। मैं गूंगे के ज़हन को नहीं पढ़ सकता था। इस वक्त ब्लैक गाइड और शबीर हसन की तरह मेरी आंखों पर भी लाइबी की पट्टी बांध दी गई थी। मैं कुछ देर तक कोशिश करता रहा कि किस तरह ब्लैक गाइड की सोच से यह गुलवा लूं कि उसकी कितनी खुफिया पनाह गए हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल मज़ाई था और बराबर अपनी पनाहगाहों के मुताल्लिक सोचने से सख्ती से इनकार करता रहा। वो समझ गया कि मैं उसके दिमाग में झांक रहा हूँ। उसने तंज़ी अंदाज में कहा, बेटे फराद, मैं तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूँ। इंसान का छोटा सा दिमाग ऐसा है जिसमें सारे जहान की वस्तुएं समा जाती हैं। मैंने ज़हन की गहराई का अंत तक मुताला किया है। ये आम सा मुताला है कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोचें होती है, एक मुस्बत, दूसरी मनफी। यानी एक सोच कहती है कि ये काम करो और दूसरी कहती है कि ना करो। बाज़ औक़ात इंसान किसी फैसले की अहम घड़ियों में इन्हीं दो सोचों के दरमियान उलझ जाता है। तुम भी मुझे इस तरह उलझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपनी मनफी सोच में अपनी खुफिया पनाहगाहों के मुताल्लिक सोचने से इनकार कर रहा हूँ और तुम मेरी मुस्बत सोच बनकर मुझे इन जगहों के मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर रहे हो। लेकिन मैंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और अपनी कुव्वत इरादी से अपनी सोच को दूसरी तरफ भटका रहा हूँ ताकि तुम्हारे बहलावे में ना आ सकूँ। मैंने उसकी मुस्बत सोच में कहा, यह मुनासिब है, मुझे अपनी सोच को दूसरी तरफ भटकाना चाहिए। ये तो मैं खुद नहीं जानता कि शीतल मुझे किस पनाहगाह की तरफ ले जाएगा, लिहाजा मुझे सोचना चाहिए कि किस मुकाम से सरहद पार करना मुनासिब होगा। मैं मौका पाकर शीतल को इशारों में समझा दूंगा कि हमें कुछ के मैदान से सरहद अबूर करना है। नहीं, उसकी मनफी सोच ने कहा, इतनी दूर रनकुंज की तरफ जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ का सबसे करीबी बॉर्डर वाक़ा है। लेकिन नहीं, अभी मुझे किसी ऐसे मुकाम के मुताल्लिक नहीं सोचना चाहिए जहाँ से मुझे गुजरना है। हो सकता है फराज मेरे ख्यालात को पढ़ रहा हो। ओ माय गॉड, सोचने की धुन में ये भूल गया था कि वो कमबख्त मेरे दिमाग में झांक रहा होगा। क्या मुसीबत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख़तरनाक दुश्मनों को ज़ेर किया, लेकिन ये तो अजीब व गरीब किस्म का दुश्मन है। हर लम्हा मेरे दिमाग में सर जमा कर बैठ जाता है। मैं गहरी नींद सोता रहूँगा तब भी ये मेरे ख्वाबों को पढ़ता रहेगा, क्योंकि ख्वाबों का तल्लक भी दिमाग से होता है। उफ, पता नहीं इस असेब की तरह दिलो दिमाग पर छा जाने वाले इस दुश्मन से कब निजात मिलेगी। वो खाइफ था और हर लम्हा ख्याल ख्वानी की सलाहियतों से सहमा हुआ था। कोई और दुश्मन होता तो घबरा कर अब तक मेरे सामने घुटने टेक चुका था, मगर वो जिद्दी
जिद्दी था। शिकस्त के आखिरी लम्हे तक पहुंचने से पहले मुझे शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ था। मैंने उस वक्त उसका पीछा छोड़ दिया और अपने माहौल में वापस आ गया। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मैं ख्याली रास्तों का मुसाफिर हूँ। मिनटों में सदियों को फासला तय कर जाता हूँ। अभी मैं बहुत दूर ब्लैक गाइड की भागती हुई कार में उसके दिमाग से चिपका हुआ था और अभी रूबी के कमरे में वापस आ गया। कमरे में बदस्तूर अंधेरा था। रूबी के बेड पर फराना पप्पू के पास लेटी हुई थी, मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी। जब मैंने खिड़की की तरफ से पलट कर उसे देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, दुश्मन चले गए? हाँ, मैंने जवाब देता हुआ उसके करीब आकर बैठ गया। तुम्हारे बेटे पर से खतरा टल गया है, वो दुश्मन अब इधर नहीं आएगा। खुदा का शुक्र है, वो इत्मीनान का सांस लेकर बोली। चलिए अब हम अपने क्वार्टर में चले। मैंने कहा, तुम जाकर आराम करो, अभी मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा है। मुजरम अस्पताल से भवानी शंकर और शबीर हसन को साथ ले गया है। मैं भी अस्पताल से चला आया हूँ। ऐसी सूरत में पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे और गुम होने वालों के मुताल्लिक मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगे। अगर मैंने इन्हें इत्मीनान दिला दिया तब भी इंटेलिजेंस वाले मुझे मजबूर करेंगे कि मैं अपनी सलाहियतों से शबीर हसन को तलाश करूं। दूसरी तरफ ब्लैक गाइड को अगर ये पता चल गया कि मैं दोबारा इंटेलिजेंस वालों से मुंसलिक हो गया हूँ तो वो मेरा पता ठिकाना मालूम करेगा और किसी वक्त भी शीतल को अचानक ही मुझ पर हमला करने के लिए भेज देगा। फरजाना, मैं तुम्हें सारी तफसील नहीं बता सकता कि मैं किस तरह दुश्मनों में गिरा हुआ हूँ। मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नहीं, मेरे साथ हमेशा मौत चलती है। तुम साथ रहोगी तो मेरी वजह से पप्पू की जिंदगी में खतरे पड़ जाएंगे। आप पप्पू की मोहब्बत का वास्ता देकर मुझे खौफजदा ना करें। इतना तो मुझे यकीन हो गया कि पप्पू आपके साए में रहेगा, जिस पर कोई आंच नहीं आएगी। क्या आप मुझे इतनी बेहस और बेमुरव्वत समझते हैं कि मैं आपकी बीमारी और मुसीबत के वक्त आपका साथ छोड़ दूंगी? मैं जानता था और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मगर मैं किसी दिन किसी लम्हे तुम्हारा साथ छोड़ जाऊंगा। ये मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि दुश्मन सरहद पार करने वाले हैं। मैं इनके देश तक इनका पीछा करूंगा और इनके घरों में घुसकर अबरतनाक सजाएं दूंगा। ठीक है, आप चले जाएं, मैं आपके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी, लेकिन मेरे कहने से आपको 2-4 रोज तक दुश्मनों से का ख्याल छोड़ना होगा। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप खतरनाक सफर कर सके। मैं आपकी जरूरत की तमाम दुआएं ले आऊंगी। सुबह शाम आपके बदन की मालिश करूंगी। जब आप पूरी तरह सेहतयाब हो जाएंगे तो फिर आपके रास्ते से हट जाऊंगी। मैं उसकी मोहब्बत और खिदमत के जज्बों से मुतासर हो चला। भला ऐसी वफादार हसीन औरत का दिल कौन तोड़ सकता था? मैंने उसके मशवरे को तस्लीम कर लिया। वो पप्पू को गोद में लेकर बाहर आ गई। मैंने पहले की तरह रूबी के साथ चलते हुए उसके क्वार्टर को लॉक किया और फरजाना के साथ उसके क्वार्टर में आ गया। इस दौरान मैं सोचता जा रहा था कि मुझे कहाँ पनाह लेना चाहिए। मैं अपनी कोठी में वापस नहीं जा सकता था, वहाँ इंटेलिजेंस वाले पहुँच जाते। अब मैं इन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि शबीर हसन, शीतल और ब्लैक गाइड की मंजिल का पता चलेगा तो मैं टेलीफोन के जरिए इंटेलिजेंस के किसी अफसर को बता दूंगा। मैं इनसे दूर रहकर अपना फर्ज पूरा कर सकता था। फरजाना ने एक सूटकेस में अपने कपड़े रखते हुए कहा, हम अपने साथ सूटकेस जरूरत का दूसरा सामान ले जाएंगे और किसी मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहेंगे। मैंने कहा, यह अच्छा मशवरा है, लेकिन किराए का मकान तलाश कौन करेगा? पता नहीं कितने दिनों की तलाश के बाद मकान मिले। अभी तो हमें फौरी सर छिपाने की कोई जगह चाहिए। बेहतर है हम किसी अच्छे से होटल में चल कर रहें। वहाँ मैं तमाम दिन कमरे में रहूँगा, कोई मुझे नहीं देख सकेगा। तुम्हारे लिए ये मुनासिब होगा कि अपना सामान इसी क्वार्टर में रहने दो। सिर्फ पहनने के लिए चंद जोड़े रख लो। मेरे लिए मुश्किल ये है कि अस्पताल के कपड़े मेरे बदन पर हैं। अगर एक जोड़ा कहीं से मुझे पहनने को मिल जाता तो। फरजाना ने कथाकलामी करते हुए कहा, मेरे पास पप्पू के पापा के चंद जोड़े रखे हैं। इनकी भी जिसामत आप ही की तरह थी
آپ ان لباسوں کو پہن کر دیکھیں، شاید آپ کے کام آ جائے۔ وہ الماری کے پاس گئی، اسے کھول کر کپڑے نکالے، پھر انہیں میرے سامنے بستر پر رکھتی ہوئی بولی، اگر آپ کو پسند آ جائے تو یہ پہن لیجئے گا، یہ آپ سمجھے تو یہ آپ کے ہیں۔ میں ایک پتلون اور شرٹ کو اٹھا کر غسل خانے میں لباس بدلنے چلا گیا۔ وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی اور میرے متعلق سوچ رہی تھی۔ جب میں لباس بدل کر باہر آیا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا خاوند دوبارہ زندہ ہو کر چلا ہو۔ وہ لباس میرے بدن پر پورا اترا تھا، میں فردانہ کے حسن معیار پر پورا اتر رہا تھا۔ وہ بے اختیار میری جانب کھینچی چلی آئی۔ پہلے تو میرے جسم پر سجے ہوئے اپنے خاوند کے لباس کو ہتھیلیوں سے سلہا کر دیکھتی رہی اور ان مسرور کن لمحات کو یاد کرتی رہی جو اس گزر جانے والے کے ساتھ گزر چکے تھے۔ پھر اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا، اس کے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر آ گئے۔ اس کے بعد وہ دھڑکتے دل سے سوچنے لگی، یہ جو میرے سامنے ہے، جس کے چٹانی سینے پر میرا سر رکھا ہوا ہے، یہی میرے سپنوں کا شہزادہ ہے۔ میں کیا کروں؟ اس کے قریب آتی ہوں تو سنبھل نہیں پاتی، اس کے بازوؤں میں آ کر ایک دم سے ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔